Hello students, today I am going to start plus one class actual syllabus. Till we have studied the zero chapter mathematical tools, that was not in fact the part of a syllabus that was necessary to understand what we are going to study in future in physics. Okay, all the theories, all the principles, but based on those formulas which we have studied in a mathematical tools. But actual syllabus is starting from a unit number 1. This unit has the 5 chapters. Okay, the actual name of this is physical world and measurement. Physical world and measurement. This physical world and measurement has 5 chapters, 5 parts. Number 1, introduction. Number 2, system of units. Number 3, measurement of length, mass and time. Number 4, dimension analysis. And number 5, errors of measurement. The introduction we are going to start today. It will take 3 videos minimum, could be 4. But I want to make you clear that this introduction part never came in the competition examinations. But in your papers, in theory part, it is very important. So in introductions, first definition is about science. What is science? You are studying physics, you are studying chemistry, you are studying biology, right? These all are the science parts. Science is actually a knowledge which humans gain through observations and experiments. We are doing an experiment and we are doing the observation of that. ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਆਈ ਐਮ holding this in my hand and I am releasing it coming down. This is an experiment. What was the observations? It fell down when released and I will collect the data that if one marker is there or 2 or 3 or less mass object is there है ना अगर घट मास है ज़्यादा मास है उन्होंने असी अगर गिरांदे तो क्या सेम इफेक्ट होना इसनू साइंस कहते हैं साइंस ये एवर डायनामिक है एवर डायनामिक का मतलब की होया कि इहदा बहुत एरिया बहुत हर जगह यूज की जाती है इहदी कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती कोई भी गल असी कहती जिमें कोई न्यूटन ने फार्मूला देता F = ma ये फिक्स नहीं है ये चेंज हो सकता है जब कोई नया ऑब्जर्वेशंस होएगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो ये चेंज हो सकता है ये फिक्स नहीं है और साइंस उसको एक्सेप्ट करेगी साइंस ये एक ओपन माइंडेड अप्रोच है इट इज अ ओपन माइंडेड अप्रोच राइट फिक्स नहीं कोई भी चीज इज इट क्लियर नो व्हाट इज द physics now? What is the physics now? Before the scope and excitement, we will study about the physics. Physics क्या है? Physics. Definition of physics. Physics is a branch of science. Is a branch of science which deals with nature and natural phenomena नेचर च की हो रहा अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ होर प्लेनेट घूम रहे ने है ना एटमोसफेयर गर्म हो जाता है गर्मियों के दिन ठंडे दिनों ठंडा हो जाता है सी है ना ये सारी नेचर है ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा एप्पल नीचे आ रहा ये सारी स्टडी फिजिक्स दे विच आती है नेचर और नेचर दे विच जो भी चीज़ हो रही है उहदे बारे जो स्टडी तुसीं करनी है दैट इज फिजिक्स
ठीक। Now what is the scope and excitement of physics? फिजिक्स की कोई स्कोप भी हैगी है कि एवं पढ़ी जाते हैं? फिजिक्स का तो बहुत वास्ट स्कोप है बेटा, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। किथे किथे फिजिक्स यूज हो सकती है ना, जिमें मैं तुहानू कहा कि एक बच्चे ने कंप्यूटर लै रखा, ठीक है, कंप्यूटर लैके वो कंप्यूटर से काम करता है। अगर मैं उन्होंने कहा भी जो तू कंप्यूटर के विच पढ़िया है वो जा और जाके तू एक रॉकेट बना दे दे नाल, है ना, स्पेस चला जा अपनी इस नॉलेज नू लैके, क्या वो जा सकता है? नहीं, उन्हें तो पढ़िया नहीं, उत्थे की होगा, किवें उत्थे सरवाइव करांगे। इसलिए कंप्यूटर का एक एरिया फिक्स हो गया। फिजिक्स के बारे में असं स्टडी करते हैं, फिजिक्स कितने कितने यूज होती है। अगर असं फिजिक्स की गल कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं फिजिक्स हैज टू डोमेन्स, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रो मतलब बड़े बड़े साइज वाले ऑब्जेक्ट जिमें चौक, डस्टर, एप्पल, ईवन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट प्लेनेट्स जी ने उन्होंने बारे ये सारी मैक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। इस स्टडी में क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स मतलब एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। इस क्लासिकल फिजिक्स के विच असी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलैक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं। मैकेनिक्स मीनस जिमें असी न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं, है ना, 9th क्लास पढ़ के एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मैकेनिक्स के विच आता है। थर्मोडायनामिक्स, फ्रिज किमें काम करता है, एसी किमें काम करता है, हीट इंजन किमें काम करता है। ये दोनों स्टडीज, बोथ स्टडीज वी आर डूइंग आल्सो, we will do also in plus 1. Electrodynamics and this optics in plus 2 we will study. Electrodynamics little bit you have studied in your 10th class. Electrodynamics means what? तुसी एक coil नू मैग्नेटिक फील्ड घुमा दो, वो करंट बना देता है ना। That study we are doing in this electrodynamics. Optics, रेजेस, लाइट जाती है ना, लाइट ग्रीन है, ब्लू है, वगैरह वगैरह, स्काई ब्लू क्यों होता है। दिस स्टडी इज इन कमिंग इन ऑप्टिक्स। सो जो फिजिक्स है बेटा वो इतनी वास्ट हो गई भी वो एक छोटे दे चौक डस्टर ते लैके वो बड़े बड़े प्लेनेट्स ते अर्थ ते मून दी उदी स्टडी कर रही है, फ्रिज की स्टडी कर रही है, रेफ्रिजरेटर की स्टडी कर रही है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी है इसकी डोमेन्स। जो एयर है, जो चौक है, डस्टर है, उसके अंदर एटम्स ने, एटम दे विच इलैक्ट्रॉन ने, प्रोटॉन ने, न्यूक्लियस है, इन्हां दी सारियां दी स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इलैक्ट्रॉन्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स चल, ठीक है, ये तुसीं स्टडी कर ली। ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स ते आ गई। माइक्रो मीन्स छोटी, है ना। इस फिजिक्स नूं बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये नहीं भी असी सिर्फ चौक डस्टर की गल कर रहे हैं, उहदे अंदर भी की हो रहा वो भी असी गल कर रहे हैं। मीनिंग इज फिजिक्स तो सारे हो गई, फिर नेचर दे विच कितना इदा ज्यादा स्कोप हो गया, है ना। समझ आ रहा? व्हाट इज द एक्साइटमेंट? क्या कोई फिजिक्स असी पढ़ रहे हैं उसदे विच सानू कोई एक्साइटमेंट दिखती है? कोई एक्साइटमेंट है फिजिक्स दे विच, पढ़ाई दे विच, है ना। तुसी हैरान हो जाओगे कि सिर्फ एक लॉ पढ़ लो, कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। ओनली फ्यू बेसिक लॉज एक्सप्लेन मैनी फिजिकल फिनोमेना। लाइक तुसी पढ़िया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ 9th क्लास पढ़िया, फिर सारे ऑब्जेक्ट दूजे नूं खिंचते हैं, तो ये नीचे क्यों आया, एक्सप्लेन हो गया। मून अर्थ के चारों तरफ घूमती है ग्रेविटेशनल फोर्स नाल, एक्सप्लेन हो गया। अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, एक्सप्लेन हो गया।
इस तरह इक्को ही ला ने बहुत सारी गल्लां एक्सप्लेन करती हैं, उस तरह ही बहुत सारे लाज ने वो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे ने, राइट। फिजिक्स ने बहुत सारी चीज़ां बनाई, अगर मैं बहुत डिटेल च जावां तो बहुत टाइम लगेगा। ब्रीफ दे विच तुहानूं दसूंगा। यूजफुल डिवाइसेस लाइक, देखो कितना एक्साइटिंग है, लाइव टेलीकास्ट टीवी मोबाइल एक्सेट्रा। लाइव टेलीकास्ट, हर एक चीज़ का लाइव टेलीकास्ट हो रहा, तुसीं मोबाइल ते बह जाते हो, फेसबुक खोल लेंदे हो और लाइव हो जाते हो, सारी दुनिया तुहानूं दिख रही है उसी टाइम। अगर तुसीं अपने दादा दादी नूं बोलो कि ऐ हो रहा तो विश्वास नहीं करनगे, हैं एवें किवें हो रहा ऐ बोलणगे, ये नहीं हो सकता, किवें दिख सकते ने, लेकिन वो हो रहा, कितना एक्साइटिंग है ना, हो रही है चीज। STD तुसीं कॉल करते हो, इंटरनेशनल कॉल करते हो, फैक्स करते हो, सैलुलर फोन यूज करते हो, पेजर यूज करते हो। पेजर के बारे तुहानूं दसां कि सबसे पहले तो लैंडलाइन फोन होंदे सी बेटा, है ना, मैं अपनी एज की गल दस रहा, 20 ईयर्स बिफोर की गल दस रहा सिर्फ तुहानूं। फिर उसके बाद पेजर आए, पेजर का मतलब जिन्ना मोबाइल होंदा है उन्ना अगर सिर्फ स्क्रीन होंदी सी, कोई पेज नहीं हो, होर कुछ थोड़े जे बटन होंदे सी, ਉਹਦੇ सिर्फ मैसेज जे ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बहुत अमीर लोग जो ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ सिर्फ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ कॉल नहीं ਹੁੰਦੀ ਸੀ, सिर्फ वो मैसेज कर सकते 4-5 ਜਿਵੇਂ कुछ लाइना लिख के अगे भेज दें। मोस्ट मैक्सिमम डॉक्टर्स कोल हुंदा सी, बड़े बिजनेसमैन कोल हुंदा सी, उन्हें बोलते सी पेजर, ठीक है। पेजर के बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल च कॉलिंग होने लग पई, होर एडवांस हो गए मोबाइल्स, फोटो भी खिंचण लग पे, कैलकुलेटर आए, उन्होंने टॉर्च आई, ये देखो स्लोली आया। फिर हुण मोबाइल आ गए, हुण तो कई कुछ वो चीज कर रहे हैं, है ना, ये कितना एक्साइटिंग है। देखो कंप्यूटर, स्पीड एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, 5th जनरेशन के कंप्यूटर ने, आज के जो कंप्यूटर ने इतने फास्ट ने, वो किन्ने इन्ने फास्ट हो जाते हैं, है ना, कितना एक्साइटिंग है। रोबोट्स, हुण तुसीं दिख रहे हो महामारी चल रही है, पैंडमिक चल रही है, कोरोना कोविड-19, तुसीं दिखिया होना कि इंडिया दे विच भी और चाइना दे विच तां यूज हो रहे ने, डॉक्टर की जगह रोबोट जाता है, दवाई दे के आंदा है, उन्होंने है ना खाना दे के आंदा है, रोबोट सारा काम कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है ना। रोबोट नूं पता है, रोबोट जिहड़े ऑपरेशन भी कर रहे हैं, फिजिक्स ने सारे डेवलप किए हैं। मून ते असीं चले गए, इत्थे बैठे बैठे असीं कंट्रोल कर रहे हैं, पिछे तुसीं देखिया होना असीं मून ते जाके एक सैटेलाइट भेजा, है ना, फेल हो गया सी, तुसीं देखिया होना, ज्यादा फास्ट नीचे गया और ब्लास्ट हो गया। कंट्रोल कित्थे कीता सी, बैठ के, नीचे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं असीं, सारा फिजिक्स के थ्रू हो रहा। हैल्थ साइंस के विच कितना डेवलपमेंट हो रही है ना, कहते हैं भी तुहानूं पत्थरी हो गई है, तुहाडे अंदर आ प्रॉब्लम आ गई है, बिना चीरा दिते वो चीज़ ठीक की जाती है। लेजर एंड यूजेज, लेजर तुसीं देखो कितना पंजाब दे विच कितनी चीज़ फैल रखी है, कैंसर, है ना, और लेजर पा के उस कैंसर के सारे टिश्यूज नूं ब्रेक कर देंदे ने। तो सारी कितनी एक्साइटिंग चीज़ है ना, कितनी एक्साइटमेंट होती है। असीं कई बार सोचते हैं यार कोई ऐसी चीज़ होंदी कि असीं इत्थों बैठे बैठे सीधे जाके दिल्ली निकलते, शिमला निकलते, है ना, साडी बॉडी कितना एक्साइटिंग होगा। किसी ने की सोचा सी 20-25 साल पहले कि एवें होएगा। मैं तुहानूं दस्सां, तुसीं हैरान होना बेटा कि मैं जब शायद 10th क्लास पढ़दा सी ते असीं मोहाली आए, एक ऑपरेशन होया साडे नाना जी का, हार्ट का ऑपरेशन, और उत्थे ATM मशीन लगी हुई सी, और कार्ड पा के पैसे निकलते सी। ऑनेस्टली कह रहा, वो पता ही नहीं सी भी कार्ड पा के पैसे किमें निकलते हैं। मैं बड़ा हैरान होया, मैं कमाल है, बैंक ते सीधे पैसे आके मशीन च आ रहे ने, कितने बैंक किथे जाके उन्होंने जमा कराए हुए ने और निकल किथे रहे ने, है ना। तो मतलब मेरे कहने का की है, उस टाइम ये चीज बड़ी नई सी कि एवें भी हो सकता है ना, किथे भी जाके पैसे कढ़ा लो, आज पॉसिबल हो रहा हो। इसी तरह कितना ये ज्यादा हजार स्पीड के नाल ट्रेनां चल रही हैं, है ना, तुसीं अद्धे घंटे ते पहले इत्थों ते दिल्ली पहुंच जाओगे। दसो फिजिक्स के थ्रू हो रहा, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी एक्साइटिंग चीज कर रहे हैं, है ना। चलो खैर थोड़ा आगे बढ़ते ना, बहुत वास्ट है चीज। फिजिक्स का रिलेशन है क्या अदर साइंसिस के नाल?
this we will study. Physics relation with other sciences. Yes, with chemistry we will study. Chemistry ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਨੀ ਕੀਤੀ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਆ ਥੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਰੀਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ? ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਿਸ਼ੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਨੀ ਬਣਾਇਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ? ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਓਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ। ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦਿਖੋਗੇ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੈਂਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖੋਗੇ। ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਸ, तो एस्ट्रोनॉमी भी फिजिक्स से डिपेंडेंट होगी। मैथ इत्थे हार गया भाई फिजिक्स। जिन्ने हुण देखो असी फिजिक्स पढ़ने वास्ते पहला चैप्टर स्टार्ट करने लई सबसे पहले मैथ पढ़िया। मैथ इज वेरी यूजफुल टूल इन द स्टडी ऑफ द फिजिक्स थ्योरीज एंड लॉज। वो अपन नूं आना चाहिए। इत्थे फिजिक्स पढ़ने लई मैथ आना चाहिए बेटा, ठीक है। So physics is dependent on math. With geology, geology ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੌਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। तो ਰੌਕਸ ਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬੇ ਸੀਗੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਟੱਡੀ को, ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਸੋ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਗੀ। Is there any relation of physics with the society? समाज ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਪਹਿਲੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਜੇਬ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ। टीवी, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इलैक्ट्रॉनिक्स इन्नी तेज हो गई ने, है ना। इतने फास्ट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए ने, है ना। तुसीं इत्थे बस दे नाल पहुंचोगे दिल्ली 6 घंटे दे विच, 6 घंटे जहाज 'च बैठ जाओ, तुसीं पहुंच जाओगे जाके कन्याकुमारी। ये सारी फिजिक्स की वजह दे नाल है। जहाज फिजिक्स के प्रिंसिपल्स ते काम करता है। मतलब जो सोसाइटी है वो टोटली उहदे विच जो लाइफ स्टाइल की जो डेवलपमेंट हो रही है फिजिक्स की वजह से नाल हो रही है, राइट बेटा। तो द नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड साइंटिस्ट, अबाउट साइंटिस्ट, इन अदर वीडियो वी विल स्टडी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।